یا اللہ یا محمد، روزانہ پانی پر پڑنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، 80 لاکھ خرچ کر کے بھی یہ فائدہ نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں دولت کا طوفان کھڑا کر دے گا، بڑی سے بڑی بیماری جسم کے کونے کونے سے نکال دے گا۔ پانی کے ایک گلاس اور یا اللہ یا محمد کا سچا معجزاتی وظیفہ آج میں اپنی تمام دکھیاری بہن بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ والو، دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہو، آپ لوگ زندگی میں ایک دن کا ایک بار یہ عمل پڑھ لینا، ہر پریشانی سے، تنگ دستی سے، بلاؤ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ گھر میں زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہر حاجت، ہر مراد، چاہے رشتوں کی بندش ہو، رشتوں میں رکاوٹ ہو، من پسند رشتے چاہتے ہو، بے اولاد میری بہنیں میرے بھائی کان کھول کر سنیں، عالم عاملوں کو پیسے دے دے کر تھک چکے ہو، اولاد نرینہ جیسی نعمت سے، رحمت سے محروم ہو، سالہ سال ہو گئے آپ کے گھر اولاد نہیں، تو ایک گلاس پینے کا پانی لے لیں۔ ایک گلاس پانی پینے کا لینا ہے آپ نے، اور میرا بتلایا ہوا وظیفہ یا اللہ یا محمد، یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس پانی کو کسی بڑی جگہ پر، کسی کولر میں، کسی مٹکے میں، جہاں پر اور پانی بھی ہو وہاں پر اسٹور کر کے خود بھی پی سکتے ہو، اور پورے گھر والے پورا دن، ایک دن، 2 دن، 3 دن، جتنے دن مرضی پئیں۔ اس پانی کے ایک گھونٹ بھی آپ نے پی لیا نا، خدا کی قسم مقدر بدل جائے گا، آپ کی تقدیر ایسے چمکے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین، اگر 100 سال کا بوڑھا بھی پڑھ لے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے، تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے، اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیلنے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر، اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانی کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے مالک خالق، اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں، لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ، آج کے اس عمل کی برکت سے، آج اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماری کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں، جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ، اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ والو، آج کے یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت پیسے لگائے ہیں، لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگے گا، نہ ہی آپ گھر سے باہر نکلو گے، نہ ہی آپ کو گاڑی کروانی پڑے گی کہ اپنے مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آج میں آپ کو سورہ کوثر کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے اس کو کیا ہو، اس کو جو کر گیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے شفا پا گیا۔ آج کل معدے کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسئلے بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا، تھکاوٹ ہو گئی، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس کا ہر بندے کو اپنی زندگی میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، 20 25 سال، جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50 سال کا، 60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں، اور یہ سب ان موذی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی، تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے اس کا علاج سورہ کوثر اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے کیا ہے۔ بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورہ کوثر کو ٹھہر ٹھہر کر
21 बार पढ़ना मामूल बनाया और चंद हफ्तों बाद उनके बदन और दिमाग में चुस्ती पैदा हो गई। इनका हर काम में दिल लगता है, बल्कि हर काम से पहले या किसी भी मुसीबत में मुब्तला होने पर सूरह कौसर का सहारा लेते हैं तो उनकी मुश्किल दूर हो जाती है। इनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसके लिए उन्होंने सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह से दुआ की तो इंतहाई माकूल रिश्ता आ गया। इनका ईमान है कि सूरह कौसर की बरकत से उनकी जिंदगी बदल गई है। कुरान मजीद पूरी इंसानियत के लिए किताब हिदायत है और उसे ये एजाज हासिल है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। उसे पढ़ने और पढ़ाने वालों को इमाम कायनात ने अपनी जुबान सादका से मुआशरे के बेहतरीन लोग करार दिया है और इसकी तलावत करने पर अल्लाह ताला एक एक हरफ पर सवाब अनायत करते हैं। नाजरीन, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने की इतनी फजीलत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का पाँव सो गया। किसी ने कहा, उन्हें याद कीजिए जो आपको सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत ने बाआवाज बुलंद कहा, या मोहम्मद। फौरन पाँव खुल गया। कुरान करीम में बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा फरमाई, या हय्युन नबिय्यु, या अय्युर रसूल, या हय्युल मुज़म्मिलु, या हय्युल मुदस्सिर वगैरह। इन तमाम आयात में हरफ निदा या के साथ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब फरमाया। सही मुस्लिम में हजरत सैयदना बर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने पाक में दाखिले का मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं, औरतें और मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए और बच्चे और गुलाम गली कूचों में मुतफरिक हो गए। नारे लगाते फिरते हैं, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। ए नबी, अल्लाह से डरते रहना और काफरों और मुनाफिकों की बात ना सुनना। बेशक अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। या हय्युन नबिय्यु, ए नबी, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को या हय्युन नबिय्यु के साथ खिताब फरमाया, जिसके मैंने ये है, हमारी तरफ से खबरें देने वाले, हमारे असरार के अमीन। हमारा खिताब हमारे प्यारे बंदों को पहुँचाने वाले नाम पाक के साथ, यानी या मोहम्मद कहकर खिताब ना फरमाया जैसे कि दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिताब फरमाया है। इससे मकसूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व तकरीम, आपका एहतराम और आपकी फजीलत को जाहिर करना है। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल नबिय्यु के साथ निदा की है, नाम के साथ निदा करते हुए या मोहम्मद नहीं फरमाया, जिस तरह दूसरे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निदा करते हुए फरमाया कि या आदम, या नूह, या मूसा, या ईसा, या ज़करिया और या याह्या अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इससे मकसूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व वजाहत को जाहिर करना है और अल नबिय्यु इन अलकाब में से जो नाम वाले के शरफ और मर्तबे पर दिलालत करता है। याद रहे कि सूरह फतह में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया है, इसमें आपका नाम पाक इसलिए जिक्र फरमाया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और लोग आपके रसूल होने का अकीदा रखें और इसको अकायदे हक्का में शुमार करें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कुरान अजीम का आम मुहावरा है कि तमाम अंबिया इकराम को नाम लेकर पुकारता है, मगर जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाया है, हजूर के औसाफ जलीला व अलकाब जमीला ही से याद किया है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका, ए नबी हमने तुझे रसूल किया। नाजरीन, और जो कोई अल्लाह और या मोहम्मद पढ़कर पानी पर दम करके पिएगा तो इस वजीफे की बरकत से उसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नाजरीन, इस आजमुदा अमल को पहले तो वो लोग जो शदीद इस वक्त बीमारियों में हैं, यानी कि कोई छोटी बीमारी, कोई मैदे के मसाइल हो, कोई इनको ऐसा मसला हो जैसे कोई दिल के इमराज हो, कोई बड़ी से बड़ी शदीद बीमारी हो जिसका इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, जहनी बीमारी हो, नफ्सियाती बीमारी हो, जिस्मानी बीमारी हो, कोई चोट घाव हो, कुछ भी हो, इस अमल को वो लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस अमल की ताकत से आपके जिस्म के कोने कोने से बीमारी दूर हो जाएगी। दूसरे नंबर पर वो लोग पढ़े जिनके घरों में भूख है, फाके है, तंगदस्ती है, बेरोजगारी है, हालात बजाय बेहतर होने के दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, घरों में फाका तंगदस्ती बढ़ती ही जा रही है, कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं, पूरी दुनिया छोड़ चुकी है, पूरी दुनिया ने मुंह फेर लिया है। तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए आज ही मेरे बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह तुम अगर माला माल ना हो जाओ तो फिर मुझे कहना। नाजरीन, ये बज़ाहिर तो एक छोटा सा अमल है और इस जैसा अमल आपने अपनी जिंदगी में ना कभी सुना होगा और ना ही इस जैसा ताकतवर अमल आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा। आप लोग बेशुमार वज़ाइफ पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़े आप लोग, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, लेकिन सिर्फ
एक गुजारिश करूंगा कि जिसकी वीडियो भी देखें, माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो आपने जिसकी वीडियो भी देखनी है कम अज कम ऐसे बंदे का वजीफा पढ़े जो मुस्तरद हो, यानी कि या तो वो खुद भी पढ़ता हो या उसने कभी किसी को कोई अमल दिया हो या जहाँ से इसने अमल दिया हो कोई मुस्तरद जगह हो, मतलब बंदा पक्का हो। अल्लाह वालों, ये अमल आपकी हर परेशानी को, बीमारी को अल्लाह पाक के हुक्म से एक दिन में अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारियों को, परेशानियों को ये अमल मिनटों और सेकेंडों में दूर कर देगा। बस आपने इस अमल को सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंसानी जिंदगी में आने वाली बहुत सी मुश्किलात में से एक बड़ी मुश्किल किसी बड़ी बीमारी का आ जाना होता है। किसी भी बड़ी बीमारी की आमद के बाद इंसान को तकलीफ, सौबत, तंगी और परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इंसान की इस तकलीफ में मुब्तला होने के बाद इसके करीबी अजीज व अकारब भी इसकी तंगी और तकलीफ के आसार को अपनी जात पर महसूस करते हैं। बसा औकात तकलीफ और तंगी इस हद तक बढ़ जाती है कि इंसान की इस तंगी और तकलीफ की वजह से उसके अजीज व अकारब भी बेजार हो जाते हैं, और बहुत से लोग अपने करीबी अजीज के लिए मौत तक की दुआएं मांगने पर आमादा तैयार हो जाते हैं। कई मरतबा इंसान मुद्दत तक अस्पतालों और इलाज गाहों में जाता रहता है, लेकिन सेहत की बहाली के इम्कानात नजर नहीं आते। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि वो भी एक लंबी बीमारी में मुब्तला हो गए। इस लंबी बीमारी के दौरान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और इस्तिकामत के दामन को नहीं छोड़ा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलात मुतवातर खंदा पेशानी के साथ बीमारी को बर्दाश्त करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ज़रर पहुँचा है और आप सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाले हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर ये दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह अंबिया में इरशाद फरमाते हैं कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकलीफ को दूर कर दिया और उनको अहल भी उनको पलटा दिए और इन जैसे अहल और भी अता फरमा दिए, और इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने रहती दुनिया तक अपने बंदों के लिए नसीहत बना दिया। इस वाक़े में काबिल गौर पहलू ये है कि कोई बीमारी जब मादी एतबार से लाइलाज करार पा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी इंसान की बीमारी को दूर करने पर कादर होते हैं। चुनांचे इंसान को अपनी जिंदगी में आने वाले इस बड़े बहरान को खंदा पेशानी से मुकाबला करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूती के साथ इस्तवार करना चाहिए और उसकी बारगाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान की बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर फरमा सकते हैं। अहादीस के मुताले से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर बीमारी के इलाज भी उसके साथ पैदा फरमाया है। ये अलग बात है कि बाज लोग इस इलाज तक पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं और बाज लोग इस इलाज को पाने में कामयाब नहीं होते। हमें चाहिए कि माली एतबार से अपना इलाज मुआवजा करवाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रहमत के तलबगार रहा करें। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अपनी उम्मीद को वाबस्ता किए रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारे जुमले इमराज को दूर फरमा देगा। सूरतुल अंबिया ही में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की जिंदगी में आने वाली एक और बड़ी मुश्किल यानी गम का जिक्र किया है। दौर हाजिर का इंसान मादी जिंदगी में मसरूफ रहने की वजह से रूहानी तौर पर तशनीकी का शिकार होकर गमों के दलदल में धंसता जा रहा है। इन गमों से निजात पाने के लिए बहुत से लोग नफ्सियाती मुआलजिन से भी रुजू करते हैं। नफ्सियाती मुआलिज तहलील नफ्सी के साथ साथ कई मरतबा मस्कन अदवा देकर मरीजों का इलाज मुआवजा करने की जुस्तजू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अंबिया में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े गम का जिक्र किया है। मछली के पेट में पानी के दबे ताहों के नीचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा और ये बात कही कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई आला नहीं और इसकी जात पाक है, और साथ ही ये बात भी कही कि जो तकलीफ मुझको आई है मेरी वजह से आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के फरियाद को कबूल फरमा लिया और इरशाद फरमाया कि मैंने इनको गम से निजात दे दी, और साथ ही अहले ईमान की ढाल बंधाने के लिए इस बात को भी वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम के गम को दूर नहीं किया था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के गमों को भी इस तरह दूर फरमाते हैं मोमिनों के गमों को भी इस तरह दूर फरमाते हैं। डिप्रेशन, अस्तराब, बेकरारी, बेचैनी और दीगर ज़हनी और नफ्सियाती बहरानों पर काबू पाने के लिए हमें अल्लाह तबारक व तआला की जात से रुजू करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को अंधेरों से रोशनियों की सिमत निकाल देते हैं और उनके जुमले गमों को दूर फरमा देते हैं। दोस्तों, आप सबसे पहले इस अमल को अपने घर में बैठ कर पढ़ें, किसी भी वक्त पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर पढ़ें, शाम पढ़ें या रात पढ़ें, दिन भर में सिर्फ एक बार पढ़ें। जिंदगी में एक बार पढ़ना ही काफी है। अगर कोई मेरा भाई
बहन ज्यादा दिन पढ़ना चाहे तो वो जितने दिन तक चाहे पढ़ सकता है, पाबंदी नहीं। लेकिन आप एक भी दिन पढ़ ले आपकी जिंदगी भर के लिए काफी है अल्लाह पाक के हुक्म से, क्योंकि ये बड़ा ही पावरफुल वजीफा है। ये अमल अपने पढ़ने वालों को इंतजार नहीं करवाता, फौरी तौर पर हाजात और मुरादें पूरी हो जाती हैं। नाजरीन, अमल शुरू करने से पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिएगा, या जो भी बेहतर लगे जो भी पढ़ना चाहे आपने वो वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है और फौरी तौर पर इस मौजाती अमल का आगाज कर देना है। एक दफा मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार और ईमान की निशानी है। दुरूद पढ़ने के मुतअद्दिद फज़ाइल सही अहादीस से साबित हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। एक दूसरी रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। और बाज़ रिवायत में है कि कसरत से दुरूद पढ़ने से गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचा लेगा। एक और मकाम पर इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, मैं किस कदर दुरूद शरीफ पढ़ा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर ज्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज किया निस्फ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो अलबत्ता ज्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज किया 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना ज्यादा करो तो बेहतर है। मैंने अर्ज किया, मैं सारे का सारा वजीफा आपके लिए क्यों ना करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तेरे गमों की किफायत होगी और गुनाह बख्श दिए जाएंगे। दुरूद और सलाम एक ऐसा महबूब व मकबूल अमल है जिससे गुनाह माफ होते हैं, शिफा हासिल होती है और दिलो जान को पाकीज़गी हासिल होती है। पढ़ने वाले के लिए सबसे बड़ी सआदत ये है कि उसे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स व नफीस सलाम के जवाब से मुशर्रफ फरमाते हैं। इससे बढ़कर ये कि सलातो सलाम किसी सूरत में और किसी मरला पर भी काबिल रद्द नहीं, बल्कि ये ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर मकबूल होता है। अगर नेक पढ़े तो दर्जा बुलंद होते हैं और अगर फासिक व फाजर पढ़े तो न सिर्फ ये कि उसके गुनाह माफ होते हैं, बल्कि इसका पढ़ा हुआ दुरूद और सलाम भी कबूल होता है। नाज़रीन, वजीफे की तरफ चलते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त आपने सबसे पहले तो एक गिलास पानी का भर लेना है। एक गिलास पानी का भर के आपने बैठ जाना है। कोशिश करें कि आपने ये अमल अपने घर में ही करना है और रात के वक्त में ज्यादा बेहतर है। ऐसे वक्त में अमल कीजिएगा कि जब पूरी तरह से फारिग हो, दुनिया के तमाम कामों से, दुनिया के तमाम उलझनों से, टेंशन से फारिग होकर आपने इस अमल को पढ़ना है। ऐसा न हो कि अमल पढ़ने के लिए पानी का आपने भर लिया और फिर लग गए बातों में फोन पर, तो फिर इस तरह अमल असर नहीं करेगा। याद रखिएगा, पूरी तरह से जब फारिग हो जाओ इस वक्त इस अमल को आपने करना है। दिन भर में एक बार पढ़ना काफी है। घर में किसी ऐसी जगह पर तन्हाई में आधे पौने मिनट के लिए कि जब तक ये अमल करो कोई आपको तंग न करे। आपकी पूरी तवज्जो, पूरा दिलो दिमाग अमल की जानिब होना चाहिए। बेदिली से पढ़ोगे, बेतरतीबी से पढ़ोगे, बेतवज्जो से पढ़ोगे तो अमल का कोई भी फायदा ना होगा। दिल में वसवसा आपने कोई भी ना रखना कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, पता नहीं असर करेगा भी या नहीं करेगा, मुझे फायदा होगा नहीं होगा। इस तरह के वसवसे, इस तरह के सवालात हमेशा अमल को जाया कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना, इंशाअल्लाह घर में जिंदगी में दौलत के ढेर लग जाएंगे। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद अल्लाह पाक ने चाहा तो मिनटों और सेकंडों में पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, दुरूद पाक पढ़कर आपने इस अमल का आगाज कर देना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने इस अमल में सबसे पहले जो काम करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने अपने अंदाज में सबसे पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा इस अमल में सबसे पहले पढ़ना है। दुरूद पाक की तादाद आपके ऊपर है, चाहे एक बार पढ़े, चाहे 10 बार, चाहे 100 बार, लेकिन कम से कम एक बार
लाजमी पढ़िएगा और फौरी तौर पर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिएगा। और जब 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले तो आपने फौरी तौर पर 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। नाजरीन, जो सूरतें हिजरत मदीना से पहले नाज़िल होती हैं उन सूरतों को मक्की कहा जाता है, और जो सूरतें हिजरत मदीना के बाद नाज़िल होते हैं इन सूरतों को मदनी सूरत कहा जाता है। और ये मक्की सूरत है और सबसे मुख्तसर सूरतों में से एक सूरत है जो कि सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारक के अंदर दुश्मन आज़म का जिक्र है, यानी दुश्मन तो बहुत होते हैं, दुनिया के अंदर हर तरह के दुश्मन होते हैं, लेकिन इसमें दुश्मन आज़म का इसलिए जिक्र है कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत जो कि सारे नबियों के सरदार हैं, उनके जो दुश्मन है इसका तज़किरा इस सूरत में है। अब जाहिर सी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के सरदार हैं और अल्लाह तबारक व तआला के बाद कायनात में उन्हीं की शान है, तो उनके साथ दुश्मनी बांधने वाला भी दुश्मन आज़म ही कहलाएगा। और इस सूरह मुबारक में दुश्मनी की तबाही, बर्बादी और अबतरी का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारक में 2 इनाम का जिक्र किया है और फिर 2 इनामों के बदले 2 शुक्रानों का भी तज़किरा किया है। पहले इनाम तो उसमें अल्लाह ने यूं जिक्र किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको खैर कसीर अता कर दिया है, यानी कौसर अता कर दिया। अब एक कौसर का मतलब तो यह है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भी और आखिरत में भी खैर कसीर यानी कौसर अता कर दिया है और हर तरह की ज़ाहिरी, बातनी और मादी मानवी खबरें आपके कदमों में लाकर डाल दी। दूसरा कौसर से मुराद हौज़े कौसर है जो जन्नत में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। इस पर अहले दिल ने लिखा है कि असल में वो हौज़े कौसर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में जो तालीमात थी, तालीमात मुहम्मदिया और तज़किया सालत जो आपका दुनिया के अंदर था, ये हौज़े कौसर उसके मुजस्सम की शक्ल है, यानी जो आखिरत में हौज़े कौसर की शक्ल में होगी। दुनिया में आपकी जो तालीमात मुहम्मदिया और आपके तज़किया और तालीम के जितने असूल और क़वाइद थे वो आपकी ज़ात और आपके साहब और अहले बैत के जरिए से ये फैजान दुनिया के अंदर आम हुआ। ये सारे का सारा तालीमात मोहम्मदी का फैजान आखिरत में हौज़े कौसर की शक्ल में मुंतकिल होगा। ये एक मुजस्सिम खैर होगी कि जो फिर अहले बैत के जरिए से आगे बढ़ेगी। जाहिर है कि यही आदिस में आता है कि हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम प्याले बांटेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्याले भर भर के देंगे। वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के जरिए से आगे इस खैर को तकसीम करवाएंगे। तो ये उसकी मुजस्सम शक्ल है जो दुनिया में आपकी तालीमात हमें नजर आती हैं। इसको अल्लाह ने खैर कसीर फरमाया है कि ऐसी खैर है कि जो कसरत से भरी हुई है और इसके अंदर किसी किस्म का दूसरा कोई शाइबा नहीं है। तो ये अल्लाह ने इनाम जिक्र किया और दूसरा इनाम आखिर में जिक्र किया कि बेशक तेरा दुश्मन ही अबतर होगा, दुम कटा होगा, बेबरकत होगा, तेरे दुश्मन का नाम मिट जाएगा। आज दुश्मन तुझे मिटाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें खबर नहीं, असल में तो मिटना उन्होंने है। तेरी जिस्मानी और रूहानी औलाद के जरिए से पूरी कायनात के अंदर डंका बजेगा और आखिरत के अंदर अलग आपकी शानें जाहिर होंगी। लिहाजा ये 2 इनाम जिक्र किए और फिर दरमियान में शुक्राने के तौर पर फरमाया कि अब तेरा काम यह है कि अपने रब के लिए सदा रेज हो जा और कुर्बानी कर। अब यहाँ बदनी और माली 2 इबादतें जिक्र कर दी कि नमाज बदनी इबादत है, तो जितनी बदनी इबादतें हैं भले इकवाल की हो, अहवाल की हो, आमाल की हो, अफआल की हो, हरकत व सुकून की हो, सारी की सारी इबादतें इसमें दाखिल हो गई कि ये इबादत उसी शुक्राने के तौर पर कर कि आपको खैर कसीर और आपके दुश्मनों को बेनाम कर दिया। दूसरा माली इबादत का जिक्र किया कि कुर्बानी माली इबादत जो कि इसमें शामिल है। आप जानवर खरीद कर अल्लाह के रास्ते में ज़िबाह कर रहे हैं तो ये माली इबादत है। तो जितनी भी माली इबादतें हैं, सदकात है, खैरात है, ज़कात है और ये सारी की सारी माली इबादतें हैं। तो कोई भी माली इबादत भले 1 पैसा या खजूर का टुकड़ा भी अगर अल्लाह के रास्ते में आप देते हैं तो गोया के आपके इन इनामात का शुक्राना जाहिर होगा। लिहाजा फरमाया इस तरीके से इस हकीकत को जाहिर करें। नाजरीन, अगर इंसान पर तंगदस्ती है, गुर्बत है, फिक्र फाका है और वो चाहता है कि मानवी और मादी दोनों एतबार से मालदार हो जाऊं, जाहिर और बातिन के एतबार से गना मिल जाए, तो 2 रकात नमाज हाजिर की नियत से नफल पढ़े और हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा ये सूरतुल कौसर पढ़े और जब सलाम फेरे तो ये जो दुआ है ये हदीस की दुआ है। ये दुआ 11 मरतबा पढ़नी है।
अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। ये पढ़ के अल्लाह से खैर मांग लें और इसकी पाबंदी कर लें और ये अमल 41 दिन की नीयत से शुरू कर लें। इंशाअल्लाह जबरदस्त इसका नफा है और आपके लिए खुशहाली के दस्तरख्वान बीत जाएंगे। तो अल्लाह ताला उस शख्स को इतना खैर कसीर अल्लाह अता फरमाएगा। और दूसरा फायदा इस सूरह मुबारका का ये है कि अगर आपके सर में शदीद दर्द रहता है तो हर तरह के टोटके आजमा लियो, हर तरह की दवाई इस्तेमाल कर लियो, मगर किसी भी तरीके से आपके सर का दर्द जाता ना हो और अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती हो, तो इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ है कि सूरतुल कौसर मरीज 7 मरतबा पढ़े और पढ़कर अपने पूरे जिस्म पर दम कर ले, या कोई इस मरीज के अलावा ये सूरह कौसर 7 मरतबा पढ़े और पढ़कर इस मरीज के ऊपर 3 दफा जोर जोर से फूके। इंशाअल्लाह 2-3 दफा ऐसा करने से जिस किस्म का भी जितना शदीद दर्द होगा वो दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फायदा नंबर 3, तीसरा फायदा इस सूरह मुबारका का ये है कि अगर किसी किस्म का पेट में शदीद दर्द हो या किसी को अल्सर की बीमारी हो और पेट में जलन महसूस होती हो, तो इसका तरीक़ेकार कुछ यूं है कि सूरह कौसर को 7 मरतबा पढ़कर 1 चुटकी नमक लेकर इसके ऊपर दम कर दें। और दम करने का तरीक़ेकार कुछ यूं है कि आपने इस तरीके से नमक ये दम करना है कि आपके मुंह से निकले हुए लाब के चंद कदरे इस नमक में शामिल हो। ये असल दम का तरीक़ेकार है। इस तरीके से आप दम करें और दम करके इस 1 चुटकी नमक को अच्छी तरह से चाट लें। या फिर आप ऐसा करें कि अगर वो शख्स जो मरीज है वो खुद ना कर सके तो कोई और भी ये नमक पर दम करके इस मरीज को चटवा सकता है। तो इंशाअल्लाह 1-2 दफा मरीज को चटवाने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा और मरीज को बिल्कुल आराम आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मरीज के पेट में दर्द हो तो सुबह ये अमल करके 1 दफा चटवा दें और फिर यही अमल शाम को दोबारा दोहराएं और यही अमल करके इस मरीज को चटवा दें। तो 1 से 2 दिन आप ये अमल करेंगे तो मुकम्मल इंशाअल्लाह पेट का दर्द या अल्सर की बीमारी या किसी किस्म की जलन होगी तो वो दफा हो जाएगी। नाजरीन, आपने इस मुजर्रिब तरीन पावरफुल अमल में सबसे पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। इस अमल में जैसे ही सूरह कौसर पढ़ ली, अब आपने जो खास वजीफा इस अमल में शामिल करना है, अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लीजिएगा और इस मौजाती वजीफे को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बड़ा कमाल का वजीफा, गैब से रिज़्क और दौलत को हासिल करने वाला, बीमारियों को परेशानियों को दूर करने वाला, पानी पर दम करने वाले इस खसूसी अमल का जो वजीफा है आपने पढ़ना है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अपने अंदाज में यह वजीफा इस अमल में या अल्लाह का शामिल कीजिएगा। आपने यह वजीफा 21 मरतबा पढ़ना है। या अल्लाह अमल में जैसे ही पढ़ ले तो अब क्या करना है, आगे बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से आपने इस पूरे अमल को करना है। जब तक ये अमल मुकम्मल न हो जाए आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। पूरे का पूरा अमल एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपने पढ़ना है और इस अमल के पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से खूब सारी दुआएं मांगनी है, जितना हो सके रब्बे करीम से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा। नाजरीन, आप इस अमल को किसी भी परेशानी के लिए पढ़ें, किसी भी तकलीफ के लिए पढ़ें, इस अमल को पढ़ के इस पानी को पीने वाले की हर मुसीबत दूर हो जाएगी, हर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी, कर्जों से छुटकारा मिल जाएगा, बे औलादों को औलाद जैसी नेमत मिल जाएगी, अल्लाह ताला की रहमत मिल जाएगी, रिश्तों की बंदिश है तो वो खत्म हो जाएगी। जिसकी जो हाजत जो मुराद होगी ये अमल वो पूरी कर देगा। अल्लाह पाक के हुक्म से ये पानी वाला अमल या अल्लाह या मोहम्मद का पानी पर दम करने वाला मौजाती अमल दुनिया जहाँ में हजारों लाखों लोग पढ़ के इस अमल को कामयाबी हासिल कर चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी में खुद कई दोस्तों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को ये अमल बतलाया है। एक दिन का ये अमल, एक घूंट पानी पीते ही आपके मसाइल हल होंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से आगे का अमल समझिएगा। इस पूरे अमल को बतलाने में, समझाने में एक एक नुक्ता, एक एक लफ्ज आपके जहनों तक बिठाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन पढ़ने जब बैठेंगे इस पूरे अमल को तो यकीन जानो ये पूरे का पूरा अमल आधे मिनट के अंदर अंदर बड़े ही आराम से पढ़ लोगे। सिर्फ 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, आधे पौने मिनट का ये अमल है। अल्लाह वालों तो हम थे। या अल्लाह के वजीफे पर 21 बार या अल्लाह का वजीफा आपने पढ़ लिया तो अब फौरी तौर पर तस्बीह हो तो अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और अब जो कमाल का वजीफा इस पानी वाले अमल पर आपने पढ़ना है। या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। आपने इस खसूसी अमल में या मोहम्मद के ये मौजाती वजीफा 21 बार पढ़ना है। इस अमल की तमाम लोगों को इजाजत आम है। जो भी मेरा भाई बहन
اس خصوصی عمل کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل میں 21 مرتبہ یا محمد کا وظیفہ بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے ایک اور مجرب ترین وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ اپنی طرف سے تعداد میں کم یا زیادہ نہ کیجیے گا۔ کمی بیشی کر کے آپ لوگ پھر ہمیں ہی کہتے ہیں وظیفے اثر نہیں کرتا، تو کمی بیشی کریں گے تو وظیفہ ویسے بھی کبھی اثر نہیں کرے گا۔ جس ترتیب سے جس تعداد میں وظائف کو بتلایا جا رہا ہے براہ کرم اسی ترتیب سے اسی تعداد میں پڑھیے گا۔ اب یا محمد کا وظیفہ 21 بار پڑھتے ہی آپ نے ایک بڑا ہی موضوعاتی وظیفہ، تنگ دستیوں کو، پریشانی کو دور کرنے والا وظیفہ، آپ نے اس عمل کے سب سے آخر میں جو پاورفل وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ اتنا کوئی طاقتور وظیفہ ہے کہ شاید آپ نے اس سے زیادہ طاقتور وظیفہ اپنی زندگی میں کیا ہو۔ رزق اور دولت کو حاصل کرنے والا ایک موضوعاتی وظیفہ ہے، غیب سے دولت کو حاصل کرنے والا، پریشانی کو دور کرنے والا۔ سب سے آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں 1 مرتبہ فوری طور پر درود و شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اب آپ نے جو پانی کا گلاس بھر کے رکھا تھا اس پر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے، یعنی کہ دم کرنا ہے۔ 3 مرتبہ دم کر کے 1-2 گھونٹ اسی وقت پی لیں۔ اس پانی میں سے باقی پانی کو کسی کولر میں، کسی مٹکے میں، کسی بڑی بوتل میں جہاں پر اور زیادہ پانی اسٹور ہو اس میں ملا دیں اور دن بھر پیتے رہیں۔ اس عمل کو آج سے ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔